Hello my viewers once more. In today's video I am going to give you the answer key of booklet series D, okay, of CET paper, Common Eligibility Test paper, which is conducted by NTA, National Testing Agency. Today is 5th of November and this paper was held in the evening session, okay, and this video is going to be very helpful, okay, for tomorrow's paper. Okay, morning session paper I have already explained in my previous video, okay, and in both these papers I have come to know that most of the English questions are similar, okay. So those students who are going to appear in tomorrow's paper, which is going to held on 6th of November at different centers in Haryana, they must watch this video, okay. It will definitely give an idea about the questions which are going to be asked for tomorrow's paper. Students, I am going to explain you only English part of this paper, okay. English language paper, 15 questions are there, okay. I have booklet series D in my hand. Question number 31 to 45 are of English language. 15 questions are very much for a competitive exam, okay. So without wasting time, let's come to question number 1. Okay, question number 1 is choose the alternative which best expresses the given sentence in active voice. Okay, this sentence is a passive voice sentence. It is being read by us, okay. It is being read by us. It is a passive voice sentence. You have to pick out which sentence is active voice, okay. Now if your answer is not among first 4 answer and you don't want to give your answer, okay, and to avoid negative marking you can write 5th option also. Now in this sentence you will feel that being is used, okay. Being is always used for continuous tense, okay. Continuous tense. Now this is not continuous, present continuous or past continuous or future continuous. This sentence is also not future continuous tense. This sentence 4 is also not continuous, okay. Second option is the right answer here. Second option is the right answer here. We are reading it, okay. Its passive voice will be it is being read by us. Second is the right answer. Now question number 32. Read the sentence to find whether there is any grammatical mistake in it, okay. Now you have to read it very carefully. These mistakes are either based on part of speech, okay, part of speech, or tenses mistakes may be there, mistake of conjunction may be there, mistake of verb may be there, okay, mistake of non-finites may be there. The scientist seemed to be excited over the result of his experiment, okay. So you have to find out where the mistake is. In first option is in C part, second is in A part, third is in B part, fourth is no error, and fifth is not attempted, okay. According to my view, B is the right answer here. The scientist seemed, okay, was is not required here. The scientist seemed to be excited over the result of his experiment, okay. Was is not required here, so A is the right answer here. Now question number in 32, A is the right answer. Now question number 33. Rearrange the following parts of sentence labeled as P, Q, R, S to make a meaningful sentence. आपको इसको meaningful sentence के अंदर है वो arrange करना है. Okay, P is leave no regret. R, Q is gained over ignorance. R is the only victories which, and S is those which are. Okay, you have to arrange these sentences, these part of sentences to make a meaningful sentence. So here option number 3 is the right answer, okay.
option number 3 is the right answer. R will come first, the only victories. Okay, then P part will come, leave no regret पछतावा होता है, regret R. Then S part will come, okay, those which are the only, then gained over ignorance. Okay, R is the third is the right answer. Our sentence will be the only victories which leave no regret are those which are gained over ignorance. Okay, third is the right answer here. Now question number 34. Choose the alternate which best expresses the meaning of underlined idiom. Okay, idiom दिया हुआ है, idiom के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ. ओके, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के जो बच्चे अपीयर हो रहे हैं, ईडीएम के ऊपर वीडियो बना चुका हूं. मेरा यूट्यूब चैनल है इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल. इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको सीईटी के नाम से प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको ईडियम्स. तो ईडियम मुहावरे होते हैं. ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट. ओके, हेयर ब्रेथ एस्केप जो होता है, बाल बचना जिसको बोल देते हैं, तो इसको हम नैरो एस्केप बोलेंगे. थर्ड आंसर है वो राइट आंसर है. इम्प्रैक्टिकल, वेरी सेफ, फ्राइटनिंग, ओके, ये रॉन्ग है. नैरो एस्केप मीन हेयर ब्रेथ एस्केप मीन्स ए वेरी नैरो एस्केप जिसको हम बाल बचना बोलते हैं. तो थर्ड इज द राइट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 35. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. आपको वो वर्ड ढूंढना है जो एक प्रकार से स्पेलिंग है बिल्कुल सही है. तो स्पेलिंग्स के ऊपर भी मैं वीडियो बना चुका हूं. ओके, अपने चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड है इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद चंद्रपाल के अंदर. तो स्पेलिंग्स के ऊपर मैंने लगभग 50 वर्ड्स की स्पेलिंग्स है वो बनाई थी, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. सब बच्चों को ये देखना चाहिए. तो क्या है ये? प्रिटेंशियसनेस होता है. प्रिटेंशंस होती हैं एक प्रकार से पखंड जिसको कह लो, हिपोक्रेसी कह लो. तो प्रिटेंशियसनेस, PRETENTIOUSNESS, प्रिटेंशियसनेस. सी पार्ट है, थर्ड ऑप्शन है, ये करेक्ट है. प्रिटेंशियन, यहाँ पर ए आना चाहिए, ई आना चाहिए था. ओके, यहाँ पर ई आना चाहिए. यहाँ पर ये करेक्ट आंसर है. यहाँ डबल टी नहीं आना चाहिए. तो प्रिटेंशियसनेस जो है वो सी पार्ट, थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ है ये राइट दिया हुआ है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36. फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. ओके, अब स्पेलिंग के ऊपर इस क्वेश्चन पेपर के अंदर दो वर्ड आ रहे हैं. ओके, ये वर्ड जो दिया हुआ है ये थिजारस है. ओके, थिजारस एक टाइप की डिक्शनरी होती है. आपको दिखा दूं, मेरे पास थिजारस की ही डिक्शनरी है, आपको दिखा दूं. ये थिजारस लिखा हुआ वर्ड है, थिजारस. ओके, तो ये वहां से ही लिया गया है. ओके, इसका जो फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है थिजारस, ये स्पेलिंग करेक्ट है. THESAURUS, थिजारस. ओके, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरीज के अंदर ये बहुत फेमस डिक्शनरी होती है थिजारस. क्वेश्चन नंबर 37. सिलेक्ट द वर्ड दैट इज मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग. सिनोनिम के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है. ओके, आपको सिनोनिम बताना है. ओके, तो क्या है? प्रोजोइक वर्ड है. प्रोजोइक वर्ड वैसे जो इसके ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में पैट्रियोटिक, देशभक्त होता है. सेकंड में अनइंस्पायरिंग, थर्ड में पोइटिक, फोर्थ में कनिंग. ओके, बड़ा चालाक किस्म का जो होता है कनिंग, एंड नॉट अटेम्प्टेड. तो यहाँ पर प्रोजोइक का वैसे जो मीनिंग होता है मोनोटोनस होता है, नीरस. लेकिन यहाँ पर जो इसका सेकंड जो सिमिलर वर्ड है वो पोइटिक भी हो सकता है, पोइटिक होगा. तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38 पर आ रहे हैं. लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड. ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट के ऊपर भी वीडियो बनी हुई है आपके लिए. मैंने सीईटी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए स्पेशली बनाई थी. तो लाइफ हिस्ट्री, उसमें ये वर्ड भी शायद कवर किया हुआ है. और जब 10th क्लास को मैं पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर ये जो क्वेश्चन है उसको बड़ा एक्सप्लेन भी करता हूँ. बायोग्राफी एंड ऑटोबायोग्राफी. ओके, लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड
बायोग्राफी। ओके, बायोग्राफी बोलते हैं जीवनी को, ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा होती है। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज ऑटोबायोग्राफी। ओके, यहाँ ऑटोबायोग्राफी 3 इज द राइट आंसर। ओके, थर्ड इज द राइट आंसर। बी इज biography of a person is written by anyone else. Okay, bibliography है ये जो रिसर्च के स्टूडेंट होते हैं वो अपनी जो बिब्लियोग्राफी देते हैं अपने बुक की एंड के अंदर। ओके, रिसर्च से संबंधित है, पीएचडी और एमफिल के स्टूडेंट्स इसको जानते होंगे। और कैलीग्राफी सुंदर हैंडराइटिंग को बोलते हैं। कैलीग्राफी हाथ से जो सुंदर हैंडराइटिंग बनावट को अलग अलग ढंग से डेकोरेटेड वे में लिखते हैं, उसको कैलीग्राफी बोलते हैं। तो 38 के अंदर जो हमारा आंसर है वो ऑटोबायोग्राफी है। एन फ्रैंक वाला जो चैप्टर है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो उसकी ऑटोबायोग्राफी ही है एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनसीन पैसेज दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, 40 एंड 41 आर बेस्ड ऑन दिस अनसीन पैसेज। ओके, जल्दी से मैं इसको पढ़ता हूँ। Tiger is one of the key wild species in the faunal web. In 1973, the authorities realized that the tiger population has dwindled very fast. The major threats to tiger population are numerous, such as poaching for trade, shrinking habitat, depletion of prey-based species, etc. The trade of tiger skins and the use of their bones in traditional medicine left the tiger population on the verge of extinction. Since India and Nepal provide habitat to about 2/3 of the surviving tiger population in the world, these two nations became prime target for poaching and illegal trading. Project Tiger, one of the publicized wildlife campaign in the world, was launched in 1973. In India, tiger conservation has been viewed not only as an effort to save the endangered species, but also as a means of preserving biotype of sizable magnitude. तो क्वेश्चन नंबर 39 है फर्स्ट, द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर आर आल्सो यूज्ड, ओके, फिर डैश दिया हुआ है, इन प्रिपरेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, एज रॉ मटेरियल इन स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, टू सेव टाइगर फ्रॉम एक्सटिंक्शन एंड नॉट अटेम्प्टेड। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन जो होगा, आंसर जो होगा वो होगा इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। द स्किन एंड बोन्स ऑफ टाइगर्स आर आल्सो यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन्स। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स थी उनके अंदर भी इसका जो यूज है वो हो रहा था। ये ऊपर दिया गया है ट्रेडिशन। द ट्रेड ऑफ टाइगर स्किन्स एंड द यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। इसी के कारण उनका जो एक प्रकार से खात्मा है टाइगर्स का, उनकी पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। नाउ क्वेश्चन नंबर 40, द मेजर थ्रेट टू टाइगर पॉपुलेशन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, लैक ऑफ टाइगर रिजर्व्स, नो गवर्नमेंट पॉलिसी, पोचिंग फॉर ट्रेड नॉट अटेम्प्टेड। तो हियर फोर्थ विल बी द राइट आंसर। ट्रेड उनका व्यापार है होता है, बोन्स का व्यापार होता है। फोर्थ इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 41, फाइंड आउट ए वर्ड from the above passage which is an antonym of legal. Okay, antonym of legal का जो होगा threat, धमकी होती है, extinction लुप्त हो जाना होता है, फ्यूना से संबंधित है, पेड़ पौधों से संबंधित है, illegal जो वर्ड है वो legal and illegal ये अपोजिट है। लीगल कानूनी होता है, इलीगल है वो गैर कानूनी होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 42, which of the following phrases given below should replace the phrase underlined in the following sentence to make a grammatically correct sentence? Okay, she showed courage in advocating policies which were not common acceptability then. Okay, common acceptability then, commonly, first option है commonly acceptable then second is commonly accept then, third is then common acceptability, fourth is common in acceptability then, and fifth option is not attempted। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो चुका है। तो यहाँ पर जो इसको रिप्लेस करने के लिए हम लिखेंगे वो होगा commonly acceptable then। फर्स्ट इज द राइट आंसर हियर।
नाउ क्वेश्चन नंबर 42, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन का क्वेश्चन है वो मॉर्निंग सेशन में भी आया हुआ है, तो बच्चों आपको प्रेपोजिशन ढंग से करके जाना चाहिए। मैंने अपने चैनल इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल के अंदर जो बेसिक ग्रामर की प्लेलिस्ट है उसके अंदर प्रेपोजिशन के ऊपर 3 वीडियो बनाई हुई है बच्चों के लिए, ताकि आप इनको अच्छी ढंग से कर सकें सभी टॉपिक्स को। क्या है, विजिटर्स इन द गार्डन आर प्रोहिबिटेड वॉकिंग ऑन द ग्रास। ओके, प्रोहिबिटेड के साथ है वो फ्रॉम प्रेपोजिशन हमेशा ही लगता है। प्रोहिबिटेड होता है रोकना। ओके, प्रोहिबिटेड फ्रॉम वॉकिंग ऑन द ग्रास। Okay, second is the right answer here. Visitor in the garden are prohibited from walking on the grass. Now question number 44. Fill in the blanks with most appropriate options given below. He was advised dash the seminar without preparation. Okay, he was advised the seminar without preparation. तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, he was advised not to attend. ओके, सेकंड ऑप्शन है वो सही होगा, नॉट टू अटेंड द सेमिनार विदाउट प्रिपरेशन। उसको सेमिनार के अंदर बिना प्रिपरेशन के लिए भेजने से मना कर दिया गया। और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका इवनिंग सेशन का, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द which one of the following indirect narration of the following sentence? He said 2 and 3 is 5. ओके, 2 and 3 is 5, तो ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके, यूनिवर्सल ट्रूथ वाले सेंटेंसेस के अंदर आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस है वो चेंज नहीं करना होता। ओके, तो 2 and 3 is 5, 2 and 3 were 5, are 5, ओके, is 5 and was 5, ये दोनों पास्ट हो चुके हैं, ये रॉन्ग हो गए। यहाँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, टेंस चेंज नहीं होगा। 2 and 3 is 5, ओके, ये थर्ड ऑप्शन है ये करेक्ट होगा। ही सेड दैट, क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है तो कोमा को हटाने के लिए हम दैट लगाते हैं। नरेशन की टॉपिक भी मैंने आपके लिए सभी बच्चों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर करवाए हुए हैं, उनको आप करवा सकते हैं, कर सकते हैं। इजी इंग्लिश एनसीईआरटी लर्निंग विद छिंदरपाल। और ये आपका इंग्लिश के 15 क्वेश्चन हैं, मैंने सोल्व किए हैं। ओके, आई विल नॉट ट्राई टू सोल्व Haryana GK question, reasoning, mathematics, okay, because it is not my subject and my only job is to prepare my students for competitive exams so that they don't feel any trouble when they appear in their competitive exam in future. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है, और अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही मेरे लिए मोटिवेशन होगा। कल का अगर पेपर मेरे पास टाइम से आया तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।